A very good morning, class 6. Today we are going to start exercise 1.3 of chapter 1, that is knowing our number. Before starting this exercise, we need to understand what is estimation. So, what is estimation? The estimation of a number is a reasonable guess to the actual value. Estimation means approximating a quantity to the accuracy required. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick and rough answer. So exactly estimation है क्या? जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को गेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन. मीन्स अप्रॉक्सीमेटिंग किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना. सो if I ask you how many members are in your family, you can tell me the exact answer, 5 members, 6 members. But if I ask you how many people in your locality, your answer will be approximately that around 50, around 40, around 100, around 150. That is called estimation. And estimation is done by rounding off the number. Estimation से आपका estimation correct हो, इसके लिए you need to understand how to round off the numbers. To understand how to round off the number, I have an example. Suppose there are 38 students in a class. Okay. So, if I ask you that how many students are approximately in this class, so what would be your answer? You will tell me that it is around 40. Now we will understand this through a number line. As you can see that here is a number line and we have the numbers between 30 to 40 and you can see the number 38 is closer to 40. अब आप इस नंबर लाइन में easily देख सकते हैं कि 38 किसके ज़्यादा क्लोज है, 40 के ज़्यादा क्लोज है. तो अब जब मैं आपसे पूछूंगी अप्रॉक्सीमेट कितने हैं, तो यू विल टेल मी द 40 स्टूडेंट, बिकॉज 38 30 से काफ़ी दूर है, इट इज़ क्लोजर टू 40 के ज़्यादा पास है. सो अप्रॉक्सीमेटली आप कितने स्टूडेंट्स बताएंगे? यू विल टेल मी दैट देयर वुड बी 40 students and in a class. So 38 is closer to 40. Now next example is, now what if there are 33 students in a class? So in this number line you can see 33 is closer to 30. So you will tell that there are around 30 students. Okay, so 33 को अगर आपको राउंड अप करना होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 30 में. Now what about 35? As you can see 35 is equidistant from 30 and 40 also. 35 एकदम सेंटर में है, मिड वे बिटवीन 30 to 40. इन केस ऑफ 35 जब आपके वंस प्लेस पे 5 होगा देन यू ऑल्सो गो फॉर 40. तो 35 को भी आप राउंड ऑफ करेंगे 40 में. In this exercise, we will understand how rounding of the numbers to the nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. First, we will understand how to round off the numbers to the nearest 10. To round off to the nearest 10, look at the ones place. अगर आपको किसी भी नंबर का nearest 10 find out करना है तो आप उसके ones के place को check करेंगे. If the digit at the ones place is 4 or less, then place a 0 at the ones place and let the digit at the tens place remain as it is. अगर आपके वंस के प्लेस की डिजिट 4 या उससे लेस है तो आप क्या करते हैं, वंस प्लेस पे यू विल पुट 0, बट आपका जो टेंस प्लेस है देयर विल बी नो चेंज इन टेंस प्लेस. टेंस प्लेस आपका बिल्कुल वही रहेगा, एग्जैक्ट, इट विल रिमेन सेम. इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 5 और मोर, अगर आपके वंस की डिजिट में 5 है या 5 से ज़्यादा कोई नंबर है, देन प्लेस अ 0 एट द वंस प्लेस पे आप 0 ही प्लेस करेंगे, बट यू विल इंक्रीज द टेंस प्लेस बाय 1. इट मीन्स आप टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें 1 को ऐड कर देंगे. सो नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए आप वंस प्लेस की डिजिट को देखेंगे. अगर वंस प्लेस की डिजिट 4 और उससे लेस है, इट मीन्स 4 3 2 1 एंड 0 है, तो आप वंस प्लेस को 0 करके टेंस प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस प्लेस आपका सेम रहेगा. लेकिन अगर आपके पास वंस के प्लेस पे 5 और मोर है, इट मीन्स 5 6 7 8 9, सो यू विल चेंज द टेंस प्लेस, यू विल इंक्रीज द टेंस प्लेस बाय 1. आप अपने टेंस प्लेस पे 1 से इंक्रीज कर देंगे. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू. सो द एग्जाम्पल 1 इज़ राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट 10. आपको ये जो नंबर गिवन है 486,
इसका नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी विल फाइंड इट? लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव द नंबर 486. वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट 10. सो टेंस की जो डिजिट है इसको मैंने सर्कल कर दिया है. आई हैव इनसर्कल्ड इट एंड 8 इज एट टेंथ प्लेस. यू कैन सी. Now we will check the ones digit. Ones के place पे you can see we are having 6 here. So जो number आपका 6 है that is greater than 5. तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड टू टेंस प्लेस 1. हम टेंस प्लेस पे जो 8 है उसको 1 ऐड कर देंगे. इट मीन्स 8 विल बिकम 9. एंड जो 6 प्लेस है आपका वंस प्लेस उसको क्या बना देंगे? 0. सो 486 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 490. ओके, क्योंकि आपके टेंस प्लेस पे 8 था और वंस प्लेस को आपने चेक किया वो 6 था विच वॉज ग्रेटर देन 5. तो आप टेंस प्लेस को 1 इंक्रीज कर देंगे. इट मीन्स 8 + 1 8 बिकम 9 एंड आपका वंस प्लेस क्या बन जाएगा? 0. सो द आंसर इज 486 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 एंड दैट इज 490. Now we have one more example here. Now again we have to find the nearest 10 of this number and the number is 1273. Tens place पे we are having 7 and ones place पे we are having 3. So जो 3 जो आपका 3 है that is less than 5. तो देयर विल बी नो चेंज एट टेंस प्लेस डिजिट. तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा. 7 7 ही रहेगा एंड 3 आप दोबारा वंस प्लेस क्या बन जाएगा? 0. सो 1273 rounded to the nearest 10 and that is equal to 1270 because आपके टेंस प्लेस पे 7 था. आपको नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना था तो टेंस प्लेस पे 7 था. यू विल चेक द वंस प्लेस 3 था. 3 इज लेस देन 5. सो क्योंकि 3 लेस है 5 से सो देयर विल बी नो चेंज इन टेंस प्लेस डिजिट. 7 विल बी 7 एंड 3 विल बिकम 0. सो द 1273 rounded to the nearest 10 is 1270. Now we will understand how to round off the numbers. Rounding off to the nearest 100. To round off to the nearest 100 फाइंड आउट करने के लिए we look at the tens place. आप tens place को चेक करेंगे. If the digit at the tens place is 4 or less, अगर tens place की digit 4 या उससे less है then place zeros at tens and ones place. वंस और टेंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा एंड द डिजिट एट 100 प्लेस रिमेन द सेम. बट आपकी 100 प्लेस की डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. बट इफ़ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5 और मोर, लेकिन अगर टेंस प्लेस की डिजिट में 5 या उससे कोई ज़्यादा नंबर है देन प्लेस जीरोज एट द टेंस एंड वंस प्लेस. वंस और टेंस प्लेस तो आपके 0 ही रहेंगे. एड 1 टू द डिजिट एट द 100 प्लेस. बट 100 प्लेस की जो डिजिट होगी इट विल इंक्रीज बाय 1. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. सो वी हैव एग्जाम्पल हेयर. राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट 100. अब आपको इस नंबर का नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है एंड द नंबर इज 3845. Now we have to find the nearest 100. So I encircle the 100 digit. 8 आपका 100 place पे है. Now we will check at tens place. Tens place पे we are having 4. So 4 is less than 5. 4 आपका 5 से less है. So there will be no change at 100 place. 8 आपका 8 ही रहेगा and ones and tens digit आपके 8 के बाद वाले digit 4 and 5 it will become 0. So the answer will be 3845 rounded to the nearest 100 is 3800. Okay, understood? Now we have one more example here. This is one more example. We are having now 1765 and we have to find nearest 100. तो nearest 100 के लिए आप टेंस की प्लेस को चेक करेंगे. That is 6. आपका टेंस प्लेस पे 6 है and as you know 6 is more than 5. 6 आपका जो है वो 5 से ज़्यादा है तो आपका 7 क्या बन जाएगा? 7 विल बी इंक्रीज बाय 1 तो 7 वुड बिकम 8 और आपके वंस और टेंस प्लेस यानी 6 एंड 5 के प्लेस पे क्या आ जाएंगे? 0 0. सो राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 1765 विल राउंडेड अप टू 1800.
Now we will understand how to rounding off to the nearest thousand. Nearest thousand कैसे find out करते हैं? To round off to the nearest thousand, look at the 100 place. अगर आपको nearest thousand find out करना है, you will check at 100 place. अगर 100 place की digit आपकी 4 या less है, if the digit at 100 place is 4 or less, then place zeros at 100 tens and ones place. तो 100 tens and ones place तो 0 बन जाएंगे, but the digit at 1000 place will remain same. 1000 place की digit में कोई change नहीं होगा. ओके, इफ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 5 और मोर, बट 100 प्लेस की डिजिट अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? 100 टेंस एंड वंस प्लेस तो 0 ही रहेंगे, बट 1000 प्लेस को यू विल इंक्रीज बाय 1. इट मीन 1000 प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे. सो हेयर वी हैव एग्जाम्पल. Now we have to round this number to nearest 1000. Okay, the number is 2910. So 1000 place पे you are having 2. Now check at the 100 place. 100 place आपका क्या है? 9 है, and 9 is greater than 5. तो 9 क्योंकि greater than 5 है तो आपका जो 2 है it will become 3. So 2910 rounded to the nearest 1000 is 3000. क्योंकि 2 की जो नेक्स्ट डिजिट थी 9 दैट इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए जो आपका 1000 प्लेस है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से. 2 + 1 3 हो गया, एंड आपके 100 टेंस एंड वंस प्लेस क्या हो जाएंगे? 0 0 0. सो 2910 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? आंसर 3000. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल हेयर एंड दैट इज़ 1536. ओके, इस नंबर को भी आपको नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है. सो टू फाइंड द नियरेस्ट 1000 प्लेस पे वी आर हैविंग 1. नाउ वी विल चेक द 100 प्लेस. नाउ 100 प्लेस पे यू कैन सी वी हैव 5 हेयर, एंड 5 के केस में भी हम क्या करते थे? अगर कोई नंबर जो है 5 है या 5 से ज़्यादा है तो भी आप क्या करते हैं? आप 1000 प्लेस को इंक्रीज कर देंगे बाय 1. ओके, और बाकी आपके टेंस वंस एंड 100 ये प्लेस क्या बन जाएंगे? 0. सो 1536 राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 इज 2000. तो आपका 1536 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 2000 होगा. नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल टू फाइंड द नियरेस्ट 1000. Here we have the number 2376. आपके 1000 के प्लेस पे you are having 2 and 100 के प्लेस को चेक करेंगे that is equal to 3. Okay, 1000 place, what is 1000 place? 2 and 100 place is 3, and as you know 3 is less than 5. आपका 3 5 से छोटा है, so there would be no change in 1000 place. So nearest 1000 of number 2376 will be 2000. तो 2376 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 2000 होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3. Now we have the very first question. Estimate each of the following using general, and the four options are given. I mean 4 questions are given. A part is 700 plus 998. B part is 796 minus 314. C part is 12,904 and 2,888. Then D part is 28,292 minus 2,149. Now what do you understand by general rule? In general rule आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स में से जो आपका लेस डिजिट वाला नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसका फर्स्ट नंबर वाला प्लेस वैल्यू उसका नियरेस्ट 1000 या 100 आप निकालेंगे. एज यू कैन सी इन ए एंड बी पार्ट यू हैव 3 डिजिट नंबर, तो इसमें आप नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे. एंड इन सी एंड डी पार्ट यू आर हैविंग 5 एंड 4 डिजिट नंबर, सो आप छोटे के लिए जाएंगे 4 डिजिट के लिए, तो 1000 प्लेस आप निकाल के इसमें नियरेस्ट 1000 आप फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग ए पार्ट. Okay, the first part is 730 plus 998. Now we will round off to hundreds. 730 is round off nearest 700. As you know 7 के आपका नेक्स्ट डिजिट 3 है which is less than 5. तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट 0 बन जाएंगे. So 730 is round off to 700. Now 998. So 998 is round off to
1000. एज यू नो 9 की नेक्स्ट डिजिट 9 है विच इज़ ग्रेटर देन 5. सो 9 में आप 1 को ऐड कर देंगे. 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10. सो इट विल बिकम 1000. सो एस्टिमेट सम ऑफ दीज नंबर 730 प्लस 998 वुड बी इक्वल टू 700 प्लस 1000. और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे एंड बाय एडिंग 700 प्लस 1000 यू विल गेट 1700 आंसर. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. In B part, we are having 796 minus 340. Now, we will round off these numbers to nearest 100. As you know, there are 3 digits in given numbers. So, we round off to the numbers to nearest 100. Now, the first is 796 is round off to, as you know, आपके 100 के प्लेस पे 7 है एंड द नेक्स्ट डिजिट 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 7 का क्या बन जाएगा 8. सो राउंड ऑफ नंबर वुड बी 800 एंड यूनिट टेंस के प्लेस पे 0 हो जाएगा. नाउ 314 इज राउंड ऑफ टू 300 बिकॉज 3 के बगल में 1 है. तो नेक्स्ट इज 1 विच इज़ लेस देन 5. सो इट वुड बिकम 300. नाउ द एस्टिमेट डिफरेंस बिटवीन 796 एंड 314 वुड बी इक्वल टू 800 minus 300 एंड जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू 500. सो 800 minus 300 would be equal to 500. Now the next is C part. 12904 plus 288 8. राउंड ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 1000. आपको मैंने पहले भी बताया था 5 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर है. सो 1000 प्लेस तक जा रहा है. सो वी विल राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 1000. नाउ 12904 इज राउंड्स ऑफ. एज यू नो 1000 प्लेस पे यू आर हैविंग 2 एंड नेक्स्ट नंबर इज 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 2 का बन जाएगा 3 एंड नेक्स्ट डिजिट्स आपके 0. सो आंसर वुड बी 13,000. नाउ 2880 इज राउंड ऑफ टू 3000 बिकॉज 2 के नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 8 है विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. सो 2 का नेक्स्ट इज 3. सो नंबर वुड बी 3000. नाउ द एस्टिमेट सम ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी इक्वल टू 13,000 प्लस 3000 एंड विच इज इक्वल टू 16,000. आप दोनों को ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 16,000. Now we have the second question and that is give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. Now in this question आपको rounding off nearest 100 एक बार करना होगा और एक बारी rounding off to nearest tens आपको दोनों करने होंगे because it is given. अब आपको जनरल रूल फॉलो नहीं करना है. आपको एक बारी nearest 100 निकालेंगे given numbers के, एक बारी nearest 10. Let's start doing this. Now the very first part is A part and that is 439 plus 334 plus 4,317. Now we will rounding the number. First we will round the number of nearest 100 बिकॉज उन्होंने हमें नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 10 दोनों से करने के लिए कहा है. सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 द नंबर वुड बी 439 वुड बिकम 400 बिकॉज 4 की नेक्स्ट डिजिट 3 है तो कोई चेंज नहीं आएगा 400 हो जाएगा. 334 वुड बिकम 300 बिकॉज 3 के नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 है. देयर वुड बी नो चेंज एंड 4,317 वुड बिकम 4,300. एज यू नो देयर इज नेक्स्ट डिजिट इज़ 1 विच इज़ लेस देन 5. सो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा. आपके नंबर्स आएंगे 400 प्लस 300 प्लस 4,300 एंड आफ्टर एडिंग दीज you will get the answer. So you will add these and you will get the answer that is equal to 5,000. Now we will round off the number to nearest tens. As you know पहले आपको nearest 100 करना था उसके बाद tens करना था. Now we will see the tens place और उसकी next digit को देखेंगे whether it is less than 5 or more than 5 or equal to 5.
सो 439 इट वुड बिकम 440 क्योंकि 3 के बगल वाला 9 है. 334 विल बिकम 330 एंड 4317 विल बिकम 4320 बिकॉज 17 है तो 7 आपका मोर देन 5 हो गया तो चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम 20. सो आफ्टर एडिंग 440 प्लस 330 प्लस 4320 इन सबको ऐड करने के बाद यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर इज इक्वल टू 5090. नाउ द बी पार्ट. In the B part, 10,000. One second. Yes. So here we have 1,08,734 minus 47,599. So first, what we have to do? First, we will round off the number to nearest 100. So for the first digit at 100 place you can see 7 is there and next digit is 3. 108734, 7 is at 100 place and next is 3, so there would be no change. So your answer will be 1,08,700. Okay. सो आपके 7 इज़ एट 100 प्लेस और नेक्स्ट डिजिट आपकी 3 है विच इज़ लेस देन 5. तो 7 में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी नंबर जीरो हो जाएंगे. 1,08,700 माइनस 47 नेक्स्ट वाले में देखिए आप 5 के नेक्स्ट जो प्लेस है दैट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5. तो 5 से क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. सो 599 वुड बिकम 600. सो आंसर विल बी 47,600. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 47,600 फ्रॉम 1,08,700 and you will get the answer and that is equal to 61,100. Now we will round off the number to nearest 10. Now we have the number 1,08,734 and 47,599. Now as you can see in the first number we have 34. nearest 10 के लिए आप tens की place देखेंगे that is 3 and next is 4. So there would be no change. It will become 1,08,730 and next वाले में you have 99. So 9 आपका tens के place पे और next आपका 9 है that is more than 5 तो आप change कर लेंगे and it will become 10 और जब वो 10 बनेगा तो आपका 59 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा. So this is 47,600. Now you will subtract 47,600 from 1,08,730 and you will get the answer that is equal to 61,130. Okay class 6, hope you have understood this much. Now D part of question number 1 and C and D part of question number 2. These 3 sums would be a homework. Do this all work in your notebook. Okay, thank you.